السلام علیکم۔ آئیے بس سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر کتنی مشقتیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی۔ بھائی مشتاق بھائی کا بیان سنتے ہیں۔ اب دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں دین کتنا قیمتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ دین کتنا معزز ہے، اور اللہ کے نزدیک یہ دین کی کتنی وقت ہے کہ اس دین کے لیے امام الانبیاء، سرور کائنات جو وجود کائنات ہے، اللہ کے بعد جس نبی کا مرتبہ اور مقام ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر خاموش ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ، کسی کا مقام، کسی کی بزرگی، کسی کی شان ہے تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ وہ امام الانبیاء کہہ رہے ہیں اس دین کے لیے جتنا میں ستایا گیا، اس دین کے لیے جتنا مجھ کو ڈرایا گیا، اور اس دین کے لیے جتنا میں نے تکلیف اٹھائی، کسی نبی کو نہیں ستایا گیا۔ تمام نبیوں کی تکلیف ایک طرف، کوئی نبی 500 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 800 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 950 سال محنت کر کے گیا، کوئی نبی 1000 سال محنت کر کے گیا۔ ان تمام نبیوں کی تکلیف ایک پلڑے میں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری تکلیف ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو ان سب کی تکلیف پر میری تکلیف بھاری ہے۔ اس سے دین کی قیمت کا اندازہ لگاؤ۔ سب سے پہلے میرے دوستوں بزرگوں، اس دین کے لیے اللہ کے نبی نے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ آپ کا وہ چہرہ، وہ نورانی چہرہ، وہ روحانی چہرہ جس کی اللہ قسم کھا رہا ہے، اس چہرے مبارک پر تھوکا گیا۔ ہاں، وہ اللہ کا نبی اللہ کے گھر میں سجدے میں بیت اللہ میں، اور آپ کی سر مبارک کو اجڑی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر گھسیٹا گیا، اور میرے دوست بزرگوں آپ کے بدن پر دھول اور مٹی ڈالی گئی۔ یہ تکلیف، سارا مکہ ایک تیر اور کمان مقابلے پر آیا ہے، سب اپنے پرائے ہو گئے۔ وہ مکہ جہاں اللہ کے نبی کو ایک برا کہنے والا نہیں تھا، آج وہ مکہ سب کے تیور بدل گئے۔ میرے نبی کی 40 سالہ زندگی، کوئی میرے نبی کا دشمن نہیں، کوئی مکہ میں اللہ کے نبی کو برا کہنے والا نہیں، سب صادق الامین کہتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا، سارا مکہ آپ کا مخالف ہوا۔ اور سب سے پہلی مخالفت اپنوں نے کی ہے، سگے چچا نے کی ہے، جس نے دامن جھاڑ کے کھڑا ہوا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو نے اس کے لیے ہم کو جمع کیا۔ اور جب اپنا مخالف کرے تو میرے دوستوں کون اس کی بات سنے گا؟ پھر پورا مکہ آپ کے مخالف ہوا۔ 2 جوان بیٹیوں کے ایک ساتھ طلاق، ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دونوں بیٹیاں، نکاح ہو چکی تھی، رخصت نہیں ہوئی تھی۔ جب سورہ تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا تم میری اولاد نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ وہ دونوں داماد آئے اور ایک نے اللہ کے نبی کے گریبان کو پکڑ کر کہا یا نبی اللہ ہمیں تیری بیٹیاں نہیں چاہیے، لے لے، طلاق دی۔ ایک باپ کے دل سے پوچھو، کہنا بہت آسان ہے، سننا بہت آسان ہے، ایک ساتھ جس کی 2 جوان بیٹیوں کو طلاق ہوئی ہو، اس باپ کے دل کا کیا حال گزرا ہوگا۔ سب سے پہلی بددعا میرے نبی کے دل سے جو نکلی اس وقت نکلی، اللہ کے نبی نے بددعا کی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ By 2030, we are going to invest over $35 billion incrementally across our businesses, $80 billion of exports by 2030. اور اللہ نے سفر کے دوران میں شیر کے ذریعے سے اس کو ہلاک کیا۔ نبی کی بددعا، دل دکھا، بیٹیوں کی طلاق ہوئی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے پیدل مکہ سے، وہ نبوت کا 10واں سال جس کو یوم میرے دوست بزرگوں غم کا سال کہا گیا۔ 3 بڑے بڑے صدمے میرے نبی نے دیکھے، 3 بڑے بڑے صدمے۔ سب سے پہلا صدمہ ابو طالب کا انتقال،
अबू तालिब के इंतकाल के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब की कीमत का एहसास हुआ। जब आपके गले में फंदा डालकर घसीटा गया तो कहा, जब तक मेरा चचा जिंदा था किसी की हिम्मत ना थी मुझ पर हाथ डालता। पहला सदमा अबू तालिब का इंतकाल। ढाल थे, ढाल, सारे मक्का कुफ्फार के बेईमानों के मुकाबले में ढाल थे, कोई आपके करीब नहीं आता था। दूसरा सदमा अम्मा जान हजरत खतीजा का विसाल। हजरत खतीजा जो मेरे नबी की सबसे बड़ी, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, सबसे ज्यादा अल्लाह के नबी का साथ देने वाली, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली, सबसे पहले अपना माल अल्लाह की राह में देने वाली, सबसे पहले 3 साल शेब अबी तालिब में अल्लाह के नबी के साथ पत्ते चबाने वाली। ये दूसरा सदमा। घर में जो बच्चियां मौजूद, अब मां का जनाजा उड़ गया। ये दूसरा सदमा। हजरत खतीजा का विसाल। और अल्लाह के नबी को हजरत खतीजा से कितना ताल्लुक, हर वक्त अल्लाह के नबी हजरत खतीजा का तस्करा फरमाते थे। तो एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला का, या नबी अल्लाह, कब तक आप इस बूढ़ी को याद करेंगे? अल्लाह ने उससे बेहतर और जवान बीवी आपको दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया और आपने हजरत आयशा के मुंह पे हाथ रख दिया और कहा, आयशा, उस जैसी अल्लाह ने मुझे कोई ना दी। उसने ऐसे वक्त में मुझ पर ईमान लाया जब कोई ईमान लाने वाला नहीं था, ऐसे वक्त में मेरा साथ दिया कोई साथ देने वाला नहीं था, और मेरी सारी औलाद उससे। अल्लाह के नबी पाक हजरत खतीजा का विसाल। और तीसरा सदमा ताइफ की वादी का तशरीफ ले जाना और ताइफ के बेईमानों का मेरे नबी को सरापा जख्मी करना। हाँ, पैदल तशरीफ ले गए थे, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के साथ थे। वहां जाके जो मेरे दोस्त ने वाक़यात में पढ़ते हैं, सुनते हैं, सरदारों को दावत दी, उन्होंने मजाक उड़ाया, इनफरादी तौर पर लोगों से मुलाकात की, उन्होंने सुनने को तैयार ना हुए। जब किसी कौम का बड़ा ही मुखालिफ हो जाए तो छोटे मानने को तैयार नहीं होते। अब मक्का के शहर और ताइफ के शरीर 2 रवैया कतार में खड़े रहे। अब मेरे नबी पे पत्थरों की बारिश हुई और आप सरापा जख्मी हुए। पंडलियों का खून, और पंडलियां इतनी फटी कि उनका खून मेरे दोस्तों बहता हुआ मेरे दोस्तों पांव तक पहुंचा और जूतियों में जाकर जमा हुआ। और हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा ने अपने दांतों से अल्लाह के नबी की जूतियों को पांव से अलग किया है। और सबसे बड़ी मेरे नबी की कुर्बानी अल्लाह के दीन के लिए, वो बैतुल्लाह की जुदाई है। एक हाजी के दिल से पूछो, एक उम्रा करने वाले से पूछो, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन बैतुल्लाह को देखता है, बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ता, मेरे दोस्त बैतुल्लाह का तवाफ करता है, बैतुल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है। जब तवाफ विदा करके हाजी लौटता है तो बच्चे की तरह रोता है, जिसे बच्चा अपनी माँ की जुदाई पर रोता है, हाजी बैतुल्लाह की जुदाई पर रोता है। तो 40 दिन के तासीर है। तो जिस नबी का बचपन, जिस नबी की जवानी और जिस नबी की जिंदगी के 53 साल उस बैतुल्लाह के साए में गुजरे हों, वो अल्लाह का नबी रात की तन्हाई में बैतुल्लाह से निकल रहा हो, उस नबी के दिल का क्या हाल हुआ होगा? कितना रोए होंगे, कितना दिल जख्मी हुआ होगा, कितना आप तड़पे होंगे। ए बैतुल्लाह, मेरा दिल तुझे छोड़ना नहीं चाहता, मेरी कौम मुझे रहने नहीं देती। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह की जुदाई पर रो रहे। फिर मक्का से बाहर निकल के आपने दुआ मांगी, ए मक्का मुझको महबूब, ये बैतुल्लाह मुझको महबूब, तू मुझे मेरे महबूब से जुदा करता है, अब तू मुझे वहां पहुंचा जो तुझको महबूब। तो अल्लाह ने मदीना में 2 महबूब, मदीना भी महबूब और मदीना वाला भी महबूब, अल्लाह ने 2 महबूब जमा कर दिए। तो मेरे नबी की इतनी बड़ी कुर्बानी। फिर मदीना के क़याम के दौरान में 10 साल और उसमें 150 सफर सहाबा के कराए, छोटे बड़े सारे 150 के करीब, और तकरीबन 27, 25 या 29 गज़वात हैं जिसमें अल्लाह के नबी खुद शरीक हुए। और ताइफ के बाद सबसे ज्यादा जख्मी अल्लाह के नबी ओहद के मैदान में हुए कि दंदाने मुबारक शहीद हुए, खुद की कड़ियां आपके माथे पे घुसी और आप मेरे दोस्तों, आपकी चेहरा खून से मेरे दोस्तों सुर्ख हुआ। अल्लाह के नबी बार बार अपने हाथ से अपने चेहरे का खून साफ करते और कहते कौम कैसे फला पाएगी जब अपने नबी के खून को बहाएगी। अच्छा सुनो, अकेले जा रही हो,
ये पेपर स्प्रे रखो। रेड बस पर पता चलता है बस में और कितनी फीमेल पैसेंजर ट्रैवल कर रही हैं। मेरे साथ तो सारा जमाना है, तुम ये रखो, तुम्हें वापस अकेले जाना है। रेड बस फॉर वुमेन मोड ऑन कीजिए और औरतों के लिए स्पेशल फीचर्स अनलॉक कीजिए। बस यानी रेड बस। सत्तर बड़े बड़े साहबा शहीद और सैयद शोहदा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी के चचा भी है, जो नबी के मेरे दोस्त बुजुर्ग और रजाई भाई भी हैं, और जो नबी के हम उम्र भी हैं और एक साथ बचपन में खेले भी हैं। एक ही दिन अब्दुल मुत्तलिब के घर हमजा पैदा हुए और अब्दुल्ला के घर मोहम्मद अरबी पैदा हुए। 3 दिन तक एक ही औरत का दूध पिया है। दूध शरीक भाई भी है और चचा भी हैं। और ये वो चचा है जो सिर्फ अल्लाह के नबी की मोहब्बत में मुसलमान हुए। अब वो चचा की जान गई, नाक कान काटे गए, हाथ मेरे दोस्त बुजुर्गों उंगलियां काटी गई, सीना चीर कर कलेजा निकाला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मैदान में पूछा कि मेरे चचा हमजा दिखाई नहीं देते। लोग तलाश में निकले, जिंदों में तलाश किया, हमजा न मिले। मुर्दों में तलाश किया तो हमजा को इस हाल में पाया। मरने वालों में तलाश किया गया तो इस हाल में पाया कि देखा नहीं जा सकता। खुद अल्लाह के नबी को कहा गया आप तशरीफ लाए, और जब आप अपने चचा का हाल देखा तो आप रो पड़े, रो, और इतना रोए कि जिब्रील अमीन तसल्ली के लिए आए और क्या कहा, या नबी अल्लाह गम न करे, अल्लाह ने आसमान पर लिख दिया असदुल्लाह व असदुर रसूल, ये अल्लाह का शेर, अल्लाह के रसूल का शेर। 70 मरतबा अल्लाह के नबी ने अपने चचा की नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये शर्फ भी किसी और को नहीं मिला। 70 साहबा शहीद हुए, हर के जनाजे के साथ मेरे नबी का जनाजा रखा गया और अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। 70 और 7 साल के बाद जब मेरे दोस्तों वैशी आया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़ा होकर कहा कि मैं वैशी हूं, अल्लाह के नबी ने कहा अंता वैशी, तू वैशी है? कहा हाँ मैं वैशी हूं। तो हुजूर ने उससे बिठाया और कहा बता तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया। फिर जब उसने कत्ल का मंजर छेड़ा फिर मेरे नबी रोए, फिर मेरे नबी रोए। ये सारी कुर्बानियां अपने लगे अपने। ज़ैद इब्न हारिसा की तश्कील हुई है, कितने दिन की? चिल्ले 4 महीने की नहीं, जान देने की। कौन है ज़ैद इब्न हारिसा? जिसने 7 साल की उम्र में अपने बाप और चचा के मुकाबले में नबी का गुलाम बनकर रहना पसंद किया, जिसको अल्लाह के नबी ने अपना बेटा बनाया था। ज़ैद इब्न मोहम्मद कहा जाता था। जाफर इब्न अबी तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हैं, हजरत अली के सगे भाई हैं, अबू तालिब का बेटा है, 33 साल का जवान है, 3 छोटे छोटे बच्चे, औन अब्दुल्ला मोहम्मद का बाप है। और आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों उर्दुन मेरे दोस्तों मोता के दामन में दफन है। अब्दुल्ला इब्न रवाहा 4 बीवियों का शोहर आज दफन है। सारी दुनिया की कुर्बानियां, अब ये सारी कुर्बानी मेरे नबी ने दीन के लिए दिलवाई। ना खुद चैन से बैठा, ना बैठने दिए, एक एक मुसलमान को दुनिया में भेजा, जाओ मेरे कलमे को लेकर, जाओ इस मुबारक दीन को लेकर दुनिया में फिरो। सबका एक ही काम बताया, सबका एक ही गम बताया, सबकी एक ही फिक्र बताया कि जो मेरे दीन को लेकर दुनिया में फिरेगा, जो अल्लाह के दीन की सरसब्दी और शादाबी की मेहनत करेगा, जो मेरी बात दूसरों तक के पहुंचाएगा, अल्लाह उसे सरसब्द और शादाब रखे, खुश खुर्रम रखे। तो भाई आपने सुना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मुसीबतें उठाई दीन के खातिर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि किसी भी नबी को इतना नहीं सताएगा जितना मुझे सताएगा। तो हमारी और वीडियो देखने के लिए मुकाबला में एक और हमारी वीडियो देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे दूसरों तक भेजें, लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको तकरीर बयान कैसा लगा। तो ठीक है भाई।
انشاءاللہ امید ہے آپ ہمیں فالو کریں گے.